أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پہلے میرے پیارے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شریف کا نذرانہ پیش کیا جائے گا. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں آپ کو کہ اسلام کے چاروں خلیفہ راشدین سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے جو ہے سو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے جو ہے سو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو ایک بار جو ہے سو حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں کسی رائے کو لے کر اختلاف ہو جاتا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی بندے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت جلالی بندے تھے. ان کا جلال جو ہے تو آج بھی جانتے ہیں، صرف اور صرف ان کا جلال انصاف کے یہاں تھا. کسی مظلوم پر وہ جلال نہیں کرتے تھے. جو دین کا غدار ہے، جو دین کے خلاف ہوتے تھے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین پر انگلی اٹھاتے تھے، ان کے لیے ان کا جلال بہت زیادہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاروں خلیفہ راشدین ہیں. تو پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ جو ہے کسی رائے کو لے کر اختلاف ہو جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تھوڑا سا جلال آ جاتا ہے، تھوڑا سا غصہ آ جاتا ہے، غصہ کر دے، غصے میں کچھ بول دیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا روتے ہوئے، وہ دیکھے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو خاص ہے اور جو ان کے دوست ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے در رسول پر جاتے ہیں. روتے ہوئے آنکھ سے آنسو ٹپک رہے، روتے ہوئے در رسول پر جاتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ دیر بعد احساس ہوتا ہے کہ یہ تو میں نے بہت غلط کر دیا تھا. ابو بکر کو نہیں ڈانٹنا تھا، یہ جلال نہیں کرنا تھا، یہ تو بہت غلط ہو گیا مجھ سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے دیکھیے نا، جو اچھے لوگ ہوتے ہیں بے شک وہ جلال کرتے ہیں، لیکن جو اچھے جو دل کے صاف ہوتے ہیں کچھ دیر بعد احساس ہو جاتا ہے انہیں، کہ ہم نے غلط کیا ہے، میں نے غلط کیا، یہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. تو اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب احساس ہوتا ہے تو وہ دوڑتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کر کھٹکھٹاتے ہیں. تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آتا. 3 بار وہ کھٹکھٹاتے ہیں تو کوئی جواب نہیں آتا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں اور ان کے آنکھ سے آنسو جانے لگتے ہیں اور پاؤں بھی ان کے کانپنے لگتے ہیں، ہاتھ اور پاؤں ان کے کانپنے لگتے ہیں. تو اتنے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف لاتے ہیں. تو پوچھتے اے عمر تمہیں کیا ہوا، تم اتنا کیوں کانپ رہے ہو، تمہارے آنکھ سے آنسو کیوں جا رہے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے پورا واقعہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، ایسا میں نے جلال کر دیا. اور ابو بکر سے جب میں نے معافی مانگنے کے لیے ان کے دروازے پر آیا تو ابو بکر گھر پر نہیں ہے. ہو نہ ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پر ہے، وہ در رسول پر ہے. اب میں آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سامنا کروں گا. جب انہیں سچ پتہ چلے گا تو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کس طرح سامنا کروں گا. جب میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کے گھر پر میں معافی مانگنے کے لیے آیا تھا، لیکن ابو بکر گھر پر نہیں ہے. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں ہوتے تھے، وہ در رسول پر ہوا کرتے. یہ سب کو پتا تھا،
یہ ہر شخص کو پتا تھا کہ جب کے دور میں جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پر نہیں رہتے تھے تو یہ ہر کوئی شخص جانتا تھا کہ یہ در رسول پر ہوں گے. یہ سب کو پتا تھا کہ جب ابو بکر گھر پر نہیں ہوتے تو یہ در رسول پر ہوا کرتے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پر تھے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ چلو میں تمہارے ساتھ آؤں گا, چلو میں تمہارے ساتھ آؤں گا, در رسول پر میں تمہارے ساتھ آؤں گا, میں تمہارے ساتھ آؤں گا, ابو بکر سے سفارش کروں گا کہ تمہیں معاف کر دے. تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پر جاتے ہیں. جب در رسول پر جاتے ہیں تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے ہمارے پیارے آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں, اور ہمارے نبی پاک وہ انبیاء کے امام و اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیچے منڈی ڈال کر بیٹھے ہیں, اور ہمارے پیارے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کی حالت میں بیٹھ کر نبی پاک کے سامنے رکوع کی حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے آنکھ سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ان کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھ سے آنسو جا رہے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در رسول پر دروازے میں کھڑے ہوئے وہ دیکھ رہے ہیں, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ نبی پاک کے بارگاہ الہی میں سلام پیش کر سکے. ان کے ہاتھ کانپ رہے, ان کے پاؤں کانپ رہے اور ان کے آنکھ سے آنسو جا رہے کہ کس طرح بات کی پہل کیا جائے, کس طرح بات شروع کی جائے. ان میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بات کی پہل کر سکے. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیارے آقائے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ الہی میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ جب سلام پیش کرتے ہیں تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پیارے نبی جو ہے سو جب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب سلام کرتے ہوئے جب منڈی اپنی گردن اٹھاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی. ان کی جو داڑھی مبارک ہے وہ پوری آنسوؤں سے بھیگ گئی. ایک طرف ابو بکر صدیق رو رہے اور ایک طرف ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رو رہے. دیکھیے اس انبیاء کے امام کی شان, دیکھیے اس انبیاء کے امام کو جو انبیاء کا امام ہے, جو اللہ کا محبوب ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات بنائی ہے, جس کے صدقے میں اللہ نے انسان بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نبیوں کو بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نے صحابہ کو بنایا, جس کے صدقے میں دنیا چل رہی ہے, جس کے صدقے میں اللہ جنت بنایا, جس کے صدقے میں اللہ نے اتنی خوبصورت دنیا بنائی. جو کچھ اللہ نے بنایا اپنے محبوب کے صدقے بنایا, تو آج اسی محبوب کے آنکھوں میں جو آج آنسوؤں سے داڑھی بھیگ گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب گردن اپنی اٹھائی تو بس ایک ہی جملہ کہا, کیا عمر تم میرے صحابہ کو میرے لیے کیا تم میرے صحابہ کو معاف نہیں کر سکتے تھے, کیا میرے لیے تم میرے صحابہ کو معاف نہیں کر سکتے تھے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے گر گئے, جلدی سے نیچے گر کر رونے لگے. وہ جلدی سے اتنا سن کر وہ نیچے گر کر رونے لگے کہ مجھے معاف کر دے. بس پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ہی جملہ بس یہی کہا انہوں نے, کیا تم نے عمر کیا تم میرے صحاب کو میرے لیے اور میری وجہ سے تو معاف نہیں کر سکتے تھے. تو یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر کر رونے لگے. تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ الہی میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پیارے نبی سے عرض کیا ہے کہ عمر کو معاف کر دے. تو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ دنیا بھول جاتی ہے اے عمر, اے علی, یہ دنیا بھول جاتی ہے, احسان بھول جاتی ہے. جب کوئی احسان کرتا ہے تو یہ دنیا بھول جاتی ہے, لیکن میں احسان نہیں بھولا. ابو بکر کے احسان مجھ پر بہت ہے, میرے کو آج بھی یہ دن یاد ہے, وہ دن میرے کو آج بھی یاد ہے. دنیا بھول جاتی ہے, لیکن میں نے وہ دن نہیں بھولا.
जब मक्के के लोग जब मुझे मारने के लिए तलवारें लेकर आया करते थे, जब मक्के के लोग तलवारें निकाल कर मुझे मारने के लिए आया करते थे, तो ये अबू बकर है सामने खड़ा हो जाता था। ये अबू बकर है जो सामने खड़ा हो जाता था। अगर तुम्हें मुस्तफ़ा तक पहुंचना है तो तुम्हें मेरी लाश से गुजर कर होते हुए मुस्तफ़ा तक पहुंचना होगा। अगर तुम्हें मेरे प्यारे नबी तक पहुंचना है, अगर तुम्हें मेरे प्यारे नबी को अगर कत्ल करना है तो तुम्हें सबसे पहले मेरी लाश पे से गुजर कर मेरे नबी तक पहुंचना होगा। ये आगे खड़ा हो जाता था। उतने लोगों के बीच, उतने तमाम मक्के के लोगों के बीच ये मेरे आगे खड़ा हो जाता था मेरी जान बचाने के लिए। ये वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। अबू बकर के एहसान मुझ पर बहुत है। क्या तुम मेरे लिए मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? क्या तुम मेरे लिए मेरे अबू बकर को माफ़ नहीं कर सकते थे? तो ये सुनकर मौला अली शेर खुदा के आंखों में से भी आंसू आ जाते हैं। ये सुनकर मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के भी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। देखिए वो दरे रसूल पर गए, दरे रसूल पर देखिए किस तरह का इंसाफ होता है। देखिए अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को छोटी सी तकलीफ क्या हो गई, मेरे प्यारे नबी आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आंखों में से आंसू निकल रहे, उनकी दाढ़ी आंसुओं में बह गई। बेशक ये दुनिया भूल जाती है, बेशक ये दुनिया भूल जाती है, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफ़ा नहीं भूलते। वो मदीने वाले मुस्तफ़ा नहीं भूलते, वो गुम्मद खतरा वाले मुस्तफ़ा नहीं भूलते, वो आमिना के लाल कभी नहीं भूलते। बेशक ये दुनिया भूल जाती है, लेकिन प्यारे नबी आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूलते। तो इस तरह जो है अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है जब मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब अर्ज़ करते हैं कि उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ़ कर दे, तो प्यारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठते हैं और उनके मौला हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गले से लगाते हैं, गले से लगाते और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ़ कर देते हैं। और मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को माफ़ कर देते हैं। तो ये देखिए ये छोटा सा हमारा वाक़या तो था जो आप तक पहुँचाना था, जो कि अगर कोई दिल भी दुखाए तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें माफ़ कर दे। चाहे आपका कोई दिल भी दुखाए तो उन्हें माफ़ कर दे, ना दिल में कोई बात रखे, ना दिल में कोई बात रह के उन्हें माफ़ कर दे। सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले, सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले। जब सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलेंगे तो वो सुन्नत तुम्हारे लिए आखिरत में काम आएगी, आखिरत में काम आएगी। बेशक इंसान, ये जो इंसान है जो दुनिया में जो है सब माल और दौलत के साथ नज़र आता है, जो इंसान है दुनिया में माल और दौलत के साथ नज़र आता है, जब क़यामत का वक्त होगा, जब महशर लगेगा, जब क़यामत का वो वक्त होगा, जब महशर लगेगा, जब हमारे आमाल गिने जाएंगे तो वो आमाल के साथ नज़र आएगा, वो अपने आमाल के साथ नज़र आएगा, ना कि दौलत, ना कि शोहरत, ना कि ये सोना, ना कि ये हीरे, ना कि जवाहरात। ये जो दुनिया की दौलत है ये सिर्फ दुनिया तक ही काम में आएगी, ना कि आखिरत में काम में आएगी। जो आखिरत में काम में आएगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल काम में आएंगे। बता तेरे क्या आमाल है। कब्र भी हमसे ये नहीं कहेगी कि कितना पैसा है तेरे पास, बता कितना पैसा है, ये नहीं पूछेगी कब्र हमसे तेरे आमाल क्या है ये बता, तेरे आमाल क्या है ये बता। ना कफन को जेब है, ना कब्र में अलमारी है, ना कफन को जेब है, ना कब्र में अलमारी है। सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ जो जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारे आमाल जाएंगे, जो हमारे आमाल जाएंगे। ना हमारे पास कुछ होगा, ना हमारे पास यहाँ की दौलत काम में आएगी, ना यहाँ का सोना काम में आएगा, ना कि यहाँ के हीरे काम में आएंगे, ना कि जवाहरात काम में आएगी, ना यहाँ की बंगले काम में आएंगे। जो काम में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ आमाल, जो उस वक्त काम में आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नेकी काम में आएगी। जो सिर्फ और सिर्फ काम में आएगा तो हमारा जो ज़कात क्या करते थे वो नेकी काम में आएगी। जिस तरह तुम लोगों को माफ़ किया करते थे, जिस तरह तुम सुन्नत मुस्तफ़ा पर चला करते थे, वो सुन्नतें तुम्हें काम में आएगी उस वक्त, वो सुन्नतें तुम्हें काम में आएगी उस वक्त। ना कि ये दौलत, अगर आपके पास दौलत है, अगर आपके पास दौलत है तो वो भी काम में
नहीं आएगी, वो भी दौलत काम में नहीं आएगी। जिस तरह आप लोगों को पैसे देकर यहाँ पर ख़रीद लेते हैं, जिस तरह पर रिश्वत देकर आप अपना काम करा लेते हैं, जिस तरह रिश्वत देकर आप अपना जो काम करा लेते हैं, अपनी बात मनवा लेते हैं, जिस तरह आप रिश्वत देकर यहाँ पर हर चीज़ का काम करा लेते हैं, ना तो फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होगा, ना फरिश्ता रिश्वत लेने वाला होगा, ना कब्र में अलमारी होगी। वहाँ जो कुछ होगा इंसाफ का फैसला होगा। वहाँ जो फैसला होगा मेरा प्यारा मेरा रब अल्लाह ताला सुब्हान ताला के बारगाह इलाही में फैसला होगा। जो रब तुम्हें दौलत देता है, जो रब तुम्हें दौलत दिया है, उस दौलत का सही से इस्तेमाल करे, उस दौलत का सही से इस्तेमाल करे दीन के कामों में। बेशक अगर आप 200 रुपये कमाते हैं या कुछ पैसे कमाते हैं, अगर आप उसमें 100 रुपये भी अगर दीन के काम में लगाएंगे, अगर आप दीन के काम में लगाएंगे तो वो नेकी आपको आखिरत के वक्त काम में आएगी, वो नेकी आपको आखिरत के वक्त काम में आएगी। ना कि अब जो देखिए दुनिया में जो सिर्फ और सिर्फ माल और दौलत के पीछे लोग भाग रहे हैं, ना कि अमाल के पीछे तो कोई भाग नहीं रहा। अल्लाह ने वादा किया है, अल्लाह ने खुद वादा किया है कि बंदे को रिस्क मैं दूँगा। अल्लाह ने जो वादा किया है रिस्क देने का, तो इंसान रिस्क के पीछे भाग रहा है। अल्लाह ने वादा किया है रिस्क देने का, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें अमाल दूंगा। अमाल हमें खुद से कमाना होगा, अमाल हमें खुद से कमाना होगा, नेकियां हमें खुद से कमाना होगा। अल्लाह ने रिस्क का वादा दिया है तो बेशक अल्लाह रिस्क हमें देगा, लेकिन अमाल हमें खुद से कमाना होगा। लेकिन इंसान अमाल नहीं कमा रहा, रिस्क कमाने के पीछे भाग रहा है, रिस्क कमाने के पीछे भाग रहा है, दुनिया की दौलत के पीछे भाग रहा है। चाहे आप कितनी भी चाहे आप किस्मत से कितना भी लड़ ले, आप चाहे कितना भी रात दिन मेहनत कर ले, आपके किस्मत में जितना लिखा है आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, ना उससे ज़्यादा मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। जितना अल्लाह आपकी किस्मत में लिखा है आपको उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा ना मिलेगा ना उससे कम मिलेगा। तो देखिए यही हमारा एक पैगाम है कि आप दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत के पीछे ना भागे, बस भागे तो अमाल के पीछे भागे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलना सीखे, सुन्नत मुस्तफ़ा पर चलना सीखे। और दुनिया तो ये हमें एक ना एक दिन छोड़कर जानी ही है। ये तो सिर्फ एक मंजिल है, ये तो सिर्फ एक मंजिल है। 10 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत से बहुत 100 साल, बहुत से बहुत 100 साल हम इस दुनिया में रह लेंगे, लेकिन हम आखिरी जो क़यामत तक जहाँ क़यामत तक हम रहेंगे वो कब्र है, जो क़यामत तक हम रहेंगे वो कब्र है। यहाँ तो बहुत से बहुत 30 साल, 40 साल, 50 साल, बहुत से बहुत हम 100 साल रह लेंगे। उसके बाद ये दौलत, ये शोहरत, ये बंगला, ये गाड़ी, ये सब कुछ हमें छोड़कर जाना है, ये सब कुछ हमें छोड़कर जाना है। जहाँ हमें क़यामत तक रहना है वो कब्र है। तो सोचिए जब हमारे अमाल हमारे पास नहीं होंगे तो हमें कब्र में किस तरह रहेंगे। जब हमें इस मौसम की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, ये गर्मा के मौसम में बिना पंखे के नहीं रह सकते, तो वो कब्र में हम बिना पंखे के किस तरह रहेंगे, कब्र की गर्मी को किस तरह बर्दाश्त करेंगे। यानी जब हमारे पास अमाल ही नहीं है, जब हमारे पास कोई नेकी ही नहीं है, तो उस मदीने वाले मुस्तफ़ा किस तरह आएंगे तुम्हें बचाने। जब तुम सुन्नत मुस्तफ़ा पर ही नहीं चलोगे तो वो आमिना का लाल तुम्हें किस तरह आएगा बचाने। अगर तुम्हारे पास कुछ सुन्नत है, तुम्हारे पास नेकियां है, अगर तुम्हारे पास नेकियां है, तुम ज़िंदगी भर तुम सिर्फ और सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले हो, ज़िंदगी भर तुम सिर्फ और सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले हो, ना हराम का खाया होगा, ना रिश्वत दिया होगा, सिर्फ और सिर्फ सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले होगे, तो वो आमिना के लाल, वो आमिना का लाल, वो उम्मत खज़रा वाले तुम्हें बेशक बचाने के लिए आएंगे। कब्र में ना तुम्हारा कोई माल काम आएगा, ना कोई तुम्हारा भाई काम आएगा, ना तुम्हारा माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना भाई काम आएगा, ना ये दुनिया का माल काम आएगा। कब्र में काम में आएंगे तो नेकियां काम आएंगे, उस आमिना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
काम आएंगे। हमें कब्र में बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, हमें कब्र के अज़ाब से बचाने के लिए कोई काम नहीं आएगा। ना तुम्हारी औलादें काम आएगी, ना तुम्हारी माँ काम आएगी, ना तुम्हारे बाप काम आएगा, ना तुम्हारा भाई काम आएगा, ना तुम्हारी बहन काम आएगी। चाहे दुनिया का कोई भी कितना भी अजीज रिश्ता हो, कोई तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचाने के लिए नहीं आएगा। जो कब्र के अज़ाब से बचाने के लिए आएगा वो मोहम्मद मुस्तफ़ा आएंगे, वो प्यारे नबी आका दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमें कब्र के अज़ाब से बचाने के लिए आएंगे। तो देखिए तुम उस नबी का सामना किस तरह करोगे, उस नबी का सामना कब्र में उस नबी का सामना किस तरह करोगे जो कि तुमने हर वक्त नबी के ना नबी की सुन्नतों पर चले होंगे, ना नबी के अहकाम माने होंगे, ना तुम्हारे पास सही से नमाज़ें पढ़े होंगे, ना तुम्हारे पास 5 वक्त की नमाज़ें होगी, ना तुम्हारे पास 5 वक्त की नमाज़ें होगी, ना तुम्हारे पास नेकियां होंगे। तो तुम किस तरह प्यारे नबी आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सामना करोगे। डरो उस कब्र के अज़ाब से, डरो उस जहन्नम के अज़ाब से, डरो उस जहन्नम के अज़ाब से, डरो उस कब्र के अज़ाब से। देखिए नाज़रीन, यही एक पैगाम था जो आप तक पहुंचाना था। ये दुनिया की गर्मी तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन महशर की गर्मी किस तरह बर्दाश्त करेंगे, महशर की गर्मी किस तरह बर्दाश्त करेंगे, ये कब्र के अज़ाब से आप लोग डरें। ये दुनिया तो हमें एक ना एक दिन छोड़कर जानी ही होगी, ना हमारे लिए कोई भाई बहन कोई बाप हमारे कोई काम नहीं आएगा। जो काम आएगा सिर्फ हमारे अमाल काम आएंगे। तो जितना हो सके उतना सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले और जितना हो सके उतना नेकियां करें, नेकियां कमाएं और जितना हो सके उतना सबसे पहले तो नमाज़ों की पाबंदी क्या करें, 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी क्या करें। आप लोग के पास तो बहुत टाइम है घूमने फिरने दोस्तों के पास जाने के लिए, आप लोग के पास बहुत टाइम है, लेकिन 5 मिनट नमाज के लिए निकाल दे आप लोग के पास टाइम नहीं है। अगर किसी से कहो अगर नमाज को चलो अज़ान हो गई तो वो कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाएगा, कुछ ना कुछ बहाना बनाकर चला जाएगा, लेकिन किसी के पास 5 मिनट नमाज के लिए टाइम नहीं है। देखिए रमज़ान में किस तरह मस्जिदें भरा हुआ करती थी, किस तरह मस्जिद में जगह नहीं रहा करती थी। पहली सफ़ में बैठने के लिए आधा घंटा पहले चला जाना पड़ता था रमज़ान के महीने में। जैसे ही अदा होती है पहली सफ़ में बैठने के लिए अदा सुनकर निकल जाना पड़ता था। अगर जैसे आप 5 मिनट में अगर लेट हो जाएगी तो पूरे सफ़े भर जाया करती थी। रमज़ान में देखिए मस्जिदें किस तरह आबाद थी। आप जाकर देखिए, आप मस्जिदों में कई सफ़े खाली है, मस्जिदों में कई सफ़े खाली है। तो देखिए हमारा यही पैगाम है कि नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है, नमाज हम पर माफ़ नहीं है, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। तो सबसे पहले आप लोग नमाज पढ़े और नमाज के लिए किसी भी काम कहीं भी और किसी भी हाल में सबसे पहले नमाज के लिए टाइम निकालें, जो हमें हमारे आखिरत के वक्त काम आएगी। जो हमसे कब्र में सवाल किया जाएगा बता नमाज़ें कहाँ हैं तेरी, तो हम क्या बताएंगे, हम क्या बताएंगे। जब अज़ा हो रही तो हम दोस्त के साथ मसरूफ़ थे, हम दोस्त के साथ जा रहे थे। जब हमें किसी ने कहा कि चलो रवाना हो गई नमाज के लिए चलो, तो हम बहाना करके चले जाते थे कि आप ये कहेंगे कब्र में जी नहीं, नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ है, नमाज़ें हम पर फ़र्ज़ है। बेशक हमें कब्र में नमाज़ों का हिसाब देना है, तो कुछ देर ही सही 5 मिनट ही सही आप नमाज़ों के लिए टाइम निकालें, नमाज़ों के लिए टाइम निकालें, क्योंकि कब्र में हमारे साथ हमारे नमाज़ें ही हमारे काम में आएगी। तो ये हमारा छोटा सा पैगाम था जो आप तक पहुँचाना था। इंशाअल्लाह ताला आप सबको अच्छा लगा और इस पर अमल भी करें और सुन्नत मुस्तफ़ा पर चले और मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करें और जिस तरह नमाज़ें पढ़े और 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी